Hello students. So today we wish to do something different. We have done a few phrases earlier, we have done a bit of the grammar section earlier. So I wish let's start something on the vocabulary front as well. If you have been taking my online classes and certain videos that we have uploaded on our Mahajan Pathshala link, you can very well go and see we have done a lot on the learning of vocabulary. Some means by word par made easy. You know this. It means we know how to learn vocabulary is by doing root words. So root words, you know, we have always been talking about you use this word and from there you can draw many words. Like if you say about pathy, then we have been saying pathy, you have telepathy, sympathy, empathy and antipathy. We were saying like this. So those words we found out from the root words. One way of doing the vocabulary. Another way of doing vocabulary is what? Another way of doing vocabulary is by prefix suffix. We can understand. Like if you know prefix and you know the suffix, they give you a bit of the idea. This word will come, will give you a meaning of this kind. Say for example, if I say inactive, then I say inappropriate, then I say insensitive. It means whenever the word in is coming, we know if a word prefix in is the negative prefix. So wherever the active is there, then inactive is there. Accurate is inaccurate there. Mobilize is immobilize. Now whenever the word am comes, before that we do not use the word in, we use the word im. So im becomes the negative prefix in that case. So many such words you find, they are the negative prefixes, but many words they give you addition to the word and then give you a different meaning. Say I say the word like this. Suppose I say the word absent, abhor, abuse, abolish. So you have the word ab. Now whenever you have the word ab means it becomes negative or away. But when you say the word adjust, adjoining, adjure, it means what? Adjacent. So that adds to something. So it means if we have a negative prefix ab, it is negative. But when we are using the word ad, it is something add on. Similarly, we have the word accrue, acclimate. So what do you say? Accurate. So when you have the word like AC, it adds on to the value of that word and then makes it different. So that is another way of doing is doing the vocabulary means if you know prefix suffix, you can do this way. If you know the word par made easy kind of funda means you know the root words, I think you can do that way. Another way of doing vocabulary we always say to our students is you have to learn a few words. You cannot do anything. You can't help it. You have to learn, because when we were doing word par made easy, we learned something that there are certain words in the English language which are being made from the name of a particular person or from the name of the land. You are unable to say anything in this case. You have to learn those words. Now if it comes to learning, so what we do? We start learning the word and then we associate that word to some kind of thing or a person. Okay, then what happens is when you associate that thing to the other person, what happens? It recalls every time you read that word. Say the word sadist, I say. So sadist word has come from what word? Sadist word has come from the word sad and ist. And we read that ist is the prefix that tells you expert. And sad means sad होता है. यानी जो sad का करने का expert हो sadist होता है. Means the one who is the person, the one who inflicts pains on others and troubles everyone and then he feels happy is known as sadist होता है. Now आपको पता चल गया sadist कौन होता है? जो दूसरों को दुख देकर खुश होता है. But how do you relate the person as sadist? So you relate this sadist now to someone you know in your life. Recall that. मुझे याद है कि वो 3 Idiot का जो प्रिंसिपल था वो sadist था. I consider it like that. तो जब भी मैं sadist सोचता हूँ तो मैं एकदम वर्ड जैसी sadist बोलता हूँ, he comes to my mind. So it is easy to learn. So that way you can associate the word with something, make a sentence related to something. I think this is easy after doing this. It makes learning easier. Okay? कुछ वर्ड्स को वैसे भी लर्न कर सकते हैं. रटना भी पड़ता है. सो लोग कहते हैं रट नहीं सकते, वोकैबुलरी रटनी नहीं होती. रटनी भी होती है. देखो यार, किसी की लैंग्वेज है, इट इज़ नॉट अवर लैंग्वेज. जैसे आपने प्रायश्चित रटा था वैसे ये भी रटना ही है काइंड ऑफ. प्रायश्चित का आपको लॉजिक मालूम है कि प्रायश्चित कहाँ से आया? नहीं मालूम.
हस्ताक्षर कहाँ से आया नहीं मालूम, आपको पता है इसको हस्ताक्षर कहते हैं। कभी आपने पूछा हिंदी के टीचर से हस्ताक्षर कैसे बना है, तो फिर इंग्लिश में कैसे? तो इंग्लिश में भी सभी का रूल तो नहीं हो सकता। इट मीन्स कुछ वर्ड्स को आपको लर्न करना होता है। ऐसी देयर सर्टेन वेज ऑफ डूइंग। अगर हम उसमें टक्कर मारते रहेंगे ऐसा क्यों, तो मुझे ग्रामर लिखनी नहीं है, मुझे इंग्लिश लिखनी नहीं है, मुझे इंग्लिश का वो वाला स्कॉलर नहीं बनना है, मुझे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करना है, अपनी लाइफ में इसको बेटर बनाना है। तो जहां मैं लॉजिक से कर सकता हूं मैं लॉजिक से करता हूं, और जहां लॉजिक से नहीं कर सकता हूं वहां मैं लर्न कर लेता हूं। लर्न जहां पर मजबूरी है। तो कई वर्ड्स ऐसे होंगे जो व्हेन यू कम अक्रॉस यू डोंट फाइंड एनी लॉजिक विद दैट, ओके, आप उसे लर्न करिए। अब लर्न करने के भी एक तो रट लीजिए वो वर्ड यहाँ लिखे है उसके सिनोनिम 5 रट लीजिए, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका मैंने बताया कि उसको यूज कर लीजिए, मेक ए सेंटेंस ऑफ दैट वर्ड एंड देन लर्न द एप्लीकेशन कि ओके यार ये ऐसे यूज होता है तो इट विल बी लाइक दिस ओनली, वो भी एक अच्छा तरीका है करने का। या फिर ऐसा हो सकता है कि मैंने कहा उसको रिलेट कर लीजिए किसी चीज़ के साथ, इट बिकम्स क्वाइट हैंडी फॉर मी। आई कंसीडर, मेरे हिसाब से सोचें तो दिस इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग कि आप सेंटेंस बनाएं साथ साथ रिलेट करते रहें तो जल्दी समझ आता है, वो अच्छा तरीका हो जाता है। ओके, नाउ another thing that another way of doing that very few people talk, it is there in the market but very few people talk about that, is that's what I wanted to talk today is mnemonics is the way. What do you mean by the word mnemonics? Mnemonics is you just write like this only. फॉर एग्जाम्पल लर्न कर लीजिए शॉर्टकट, ऐसा समझ लीजिए क्या है। जब अपने स्कूल में विबग्योर पढ़ा था तो विबग्योर क्या था, वो तो अपने वायलेट इंडिगो ब्लू एंड समथिंग 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 था, बट उसका आपने क्या बनाया, एक निमोनिक्स बना लिया, आपको लर्न करना आसान हो गया। तो व्हाट आई सेइंग इज निमोनिक इज समथिंग इज ए शॉर्टकट दैट यू डिराइव फॉर योरसेल्फ टू लर्न समथिंग। वो कुछ भी हो सकता है, साइंस वाले तो बहुत सारे बनाते हैं, ठीक है, तो आप निमोनिक्स बनाते हैं जल्दी लर्न हो जाता है। काफ़ी टीचर्स सिखा रहे हैं कि भैया बीएसटी में ऐसे आपको सिखाते हैं, इकोनॉमिक्स में आते हैं, ये फंडा होता है, इसको ऐसे याद करिए, वही तो निमोनिक्स होते हैं। तो ये निमोनिक्स है। निमोनिक्स मतलब कोई शॉर्टकट ताकि वर्ड आपको जल्दी से क्लिक हो जाए, अच्छा यार ये था। दैट्स व्हाट द केस इज। सी आई नीड टू लर्न द वर्ड and its application, so it should strike my mind immediately when I see the word. That's the case. तो उसको कुछ वर्ड, नॉट ऑल दी वर्ड्स, वट एवर आई नो, वट एवर दे आर अवेलेबल इन द मार्केट, फिर धीरे धीरे आप अपना एक शॉर्टकट बनाने लगते हैं जहां पर आपको लगता है यार मैं रूट वर्ड से नहीं जा पा रहा हूँ, प्रीफिक्स सफिक्स से नहीं कर सकता हूँ, या किसी और के सिनोनिम नहीं बनते, तो फिर कैसे करूँ, फिर ऐसे करूँ। दिस इज द वे वी नीड टू डू। ओके, आई जस्ट वॉन्ट टू डिस्कस अ फ्यू वर्ड्स विद यू। लर्न, लेट्स सी व्हाट वी लर्न। वन वर्ड इज एक्लीमेट होता है। एक्लीमेट का मतलब होता है, अगर आप देखो तो वर्ड पे मीनिंग लिखता हूं, टू एडजस्ट विद द कंडीशंस, दैट इज एक्लीमेट होता है। ओके, दैट इज एक्लीमेट means during coronavirus process and all, when we are sitting at home and then studying home and all digital electronics, digital learning and all, it was not our way of learning. We were going to conventional schools and learning there, but now we are trying to acclimate, okay, acclimate to this kind of situation, acclimate to this kind of learning. उसको अपने आप को ढाल रहे हैं, जिसे कहते हैं अडेप्ट कर लेना होता है। आप अपने आप को अडेप्ट करते हैं, वही acclimate कर लेना होता है, तो acclimate हो जाता है। ओके, नाउ द लर्निंग इज एक्लीमेट हो गया। तो मैंने कहा कि यार ये वर्ड इसके लिए एक और भी निकल के आ गया कि अडेप्ट हो जाते हैं। ओके, जब आप अडेप्ट वर्ड सीखोगे, यू अडेप्ट योरसेल्फ टू द सिचुएशन होता है, टू द कंडीशन होता है। अडेप्ट के साथ प्रपोजिशन टू लगाते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो एक वर्ड होता है अडेप्ट, इसी के साथ साथ लर्न कर लेना जरूरी है। अडेप्ट का मतलब होता है skilled, adept engineer he is, we say like that, कि he is an adept engineer. Adept is skilled है, proficient we say like that. और adapt मतलब एडजस्ट कर लेना है, अपने आप को ढाल लेना है। तो अभी आप क्या कर रहे हैं, एक्लीमेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर से जाइए बॉम्बे, बॉम्बे में तो सर्दी होती नहीं,
और वहाँ तो आपके स्वेटर वेटर की ज़रूरत नहीं है, तो धीरे धीरे आप वहाँ पर उसी ह्यूमिड एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंगली अपने आप को क्या कर रहे हैं, एक्लीमेट कर रहे हैं। लर्न हो गया एक्लीमेट, समझ आ गया बॉम्बे से दिल्ली से कश्मीर से बॉम्बे जाकर कैसे एडजस्ट करना है, एक्लीमेट हो गया। नो व्हाट आई वांट टू लर्न हियर इज, अगर मैं इस वर्ड को थोड़ा सा भी, जिसे हिंदी में बोलते हैं लिटिल वर्ड में जुगाड़, ये भी तो आपका जुगाड़ी था। जब आपने विवग्योर बनाया था तो वो क्या था, जुगाड़ी था। तो हम भी उसका एक छोटा शॉर्टकट बना रहे हैं। क्या, यहाँ मैं देख रहा हूँ एक्लीमेट वर्ड को मैं ऐसा मन में एडजस्ट करता हूँ कि यार ये ऐसा नहीं लगता अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। देखो ऐसा लग रहा है एक्लीमेट, क्लाइमेट, ऐसा देखो पढ़कर एक्लीमेट। तो आई अंडरस्टैंड दिस कि यार ये एक्लीमेट वर्ड बोलते ही मेरे दिमाग में अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट आ जाता है। यानी अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट मतलब फिर वही कश्मीर बॉम्बे वाला सीन आ जाता है। फिर इट इज़ ईजी टू लर्न कि अच्छा जी एक्लीमेट मतलब अपने आप को एडजस्ट करना होता है वेदर के अकॉर्डिंगली, क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली, मतलब फिर जो भी माहौल होगा उसके अकॉर्डिंगली एक्लीमेट करना होता है। तो आई लर्न इट बाई दी वर्ड, ब्रेकिंग द वर्ड एक्लीमेट, क्लाइमेट, something like this. Okay, now I know what acclimate is. Okay, now what the word, another word I want to learn is ravenous होता है। We say the word ravenous होता है। Ravenous means, I write the word for you, ravenous is very hungry, जिसे word बोलते हैं famished। Have you heard the word famished? एक्सट्रीमली हंग्री जिसे कहते हैं। व्हेन यू रीच होम यू से यार मुझे बहुत भूख लगी है, तो देन यू कैन से आई एम फैमिश्ड, आई एम रेवनस। ओके, दैट वी से रेवनस हो जाता है। एक्सट्रीमली हंग्री के लिए यूज़ करते हैं, रेवनस होता है। आई वॉज सो हंग्री दैट आई कुड इवन ईट ए हॉर्स, दैट काइंड ऑफ हंग्री, एग्जैजरेटेड जिसे बोलते हैं, ठीक है, हाइपरबोले जो वर्ड होता है वैसे वाला रेवनस हो जाता है। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हंग्री को हम रेवनस कहने लग जाते हैं, कह सकते हैं। ठीक, नाउ रेवनस वर्ड को लर्न करने के लिए लॉजिक देखें। लॉजिक में साउंड फनी, बट ये गारंटी करता हूँ जितने वर्ड आप पढ़ेंगे ये आपको याद रहेंगे, या आई प्रॉमिस यू, इफ़ यू ट्राई इट you yourself will say कि this is really a good way of doing, at least you learn them in easily. Ravenous word है। Now ravenous is, say like this, us or raven. I take it like this, Ravan, and I do like this, thus. Ravenous, Ravan, us, Ravan, thus. तो रावण के तो भाई 10 सर थे, तो रेवनस मतलब रावण के 10 सर, रावण 10, रावण के 10 सर। तो अगर वो एक मुंह से 2 रोटी खाता होगा तो 10 मुंह से फिर 20 ही तो खाएगा। तो जब आप रावणस हो जाते हो यानी रावण के 10 सर निकल आते हैं, इसका मतलब नेचुरली आप ज़्यादा भूखे होते हो, ऐसा मान लें। तो फिर आप रेवनस का मतलब यू आर ईटिंग विद योर 10 माउथ, से लाइक दैट, यू हैव 10 हेड, से लाइक दिस। इट मीन्स रेवनस 10 सिर से खाने वाला, यानी ज़्यादा खाने वाला हो गया, यानी आप रेवनस हैं तो मतलब आप बहुत भूखे हैं। इस तरीके से याद किया जा सकता है। यू विल नॉट फॉरगेट इट फॉर श्योर। डैपर इज द वर्ड। व्हेन यू से द वर्ड डैपर होता है, डैपर इज वेरी वेरी वी से नीट एंड टाइडी लुक्स के लिए यूज़ करते हैं। दैट इज़ डैपर लुक्स होती है। बहुत ही कोई आदमी सौबर तरीके से रेडी हुआ, बहुत ही स्टाइलिश वाला, स्टाइलिश मतलब बड़ा एलिगेंट काइंड ऑफ थिंग, ये नहीं कि बड़ा भड़कीला वाला, एलिगेंट होता है। तो वो जरा बहुत ही नीट एंड क्लीन उसकी लुक्स हैं, नीट एंड टाइडी लुक्स हैं, तो वी से ही हैज़ डैपर लुक्स। यानी सम काइंड ऑफ द पर्सन, द वन इन ऑफिस, द वन हु अटेंड्स हिज ऑफिस ऑलवेज इन ए प्रॉपर स्टाइल, उसके क्लोथिंग एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट, अप टू द मार्क, नथिंग हियर एंड देयर। तो वो क्या बोलेंगे, उसकी हमेशा डैपर लुक्स होती हैं भाई। उस पर्सन दैट ही कम्स ऑलवेज इन डैपर स्टाइल, डैपर लुक्स, दैट ही ऑलवेज हैज़ डैपर लुक्स, डैपर हो जाएगा। तो नीट एंड टाइडी हो जाता है, वैसे डैपर होता है ना। डैपर को तो भाई इजी समझ आता है। डैपर को अगर याद कर लो डायपर से तो फिर याद रहेगा नहीं जी। व्हेन यू मेक द चाइल्ड वियर ए डायपर, ही लुक्स वेरी स्वीट, वेरी नीट एंड क्लीन। फिर वो आप बाहर भी ले जाओ, अंदर कुछ भी सामान गंदा हो, लेकिन बाहर से तो सही लगता है। तो
तो यानी वो देन ही हैज़ वेरी नीट एंड टाइडी लुक्स, यानी डाइपर से आप डैपर याद कर सकते हो, यानी वो इजीली नीट एंड क्लीन लुक्स को इंडिकेट करता है. ओके, सो नाउ वी हैव द वर्ड acclimate, we have the word ravenous, and we have the word dapper. If you just try to recall yourself, क्या पढ़ा? acclimate according to climate, ravenous रावण के हैं 10 यानी ज़्यादा खाने वाला, और हमने पढ़ा dapper, dapper means डाइपर वाला यानी क्लीन लुक्स वाला, तो डैपर हो जाता है. ओके, काइंडली नोट दिस, वी विल डिस्कस ए फ्यू मोर. So 3 words we learned and a few words in between along with this. Now 4th word I say is stolid. The word is stolid. Stolid word means we say unflinching, does not deviate with emotions. ओके, तो जब कोई हालात ऐसे आ जाएं तो वो घबराता नहीं है, स्टॉलिड रहता है, अनफ्लिंचिंग होता है, घबरा नहीं जाता है, दैट इज स्टॉलिड हो जाता है. तो ही सेड दिस थिंग स्टॉलिडली. सी ही गॉट द न्यूज ऑफ द डेथ ऑफ हिज फादर, but he stolidly said that he would complete the task and then only leave. That is stolidly. He definitely must be feeling very sad, but he continued with the work he had, and after that he left for the other things. So what is stolid हो जाता है, तो यानी वो अनइमोशनल रहा. थोड़ी देर के लिए उसने इमोशन तो थे लेकिन वो इमोशन को उसने अफेक्ट नहीं करने दिया, अनफ्लिंचिंग रहा, अनडिटर्ड रहा, डिस्टर्ब नहीं हुआ, स्टॉलिड हो जाता है. अब तो समझ ही आ रहा है, स्टॉलिड वर्ड को देखो तोड़कर तो समझ नहीं आता कि स्टील प्लस सॉलिड है, बस फिर तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है. स्टॉलिड है, स्टील जैसा सॉलिड रहा, विच मीन्स डिस्टर्ब नहीं हुआ, स्टॉलिड होता है. दैट इज व्हाट द केस इज. स्टॉलिड, स्टील, सॉलिड, स्टॉलिड हो जाता है. ओके, देन नाउ इफ वी रीड द वर्ड स्टॉलिड, देन अकॉर्डिंग देन देयर इज अ वर्ड pliable. Pliable person, pliable fellow. Pliable is the one who is flexible. Pliable is the one who is flexible, who adjusts with conditions. You can say, जो आपको किसी के बारे में डिसीजन लेना है, ही इज़ नॉट अराउंड, देन आई एम सेइंग कि यार वो तो है नहीं, उससे पूछ लेते हैं. आपके तो कोई बात नहीं यार, ही इज़ वेरी प्लाइबल गाय, ही विल अग्री टू दैट. व्हाट आई एम सेइंग इज़ वो एडजस्ट कर लेगा, फ्लेक्सिबल पर्सन है, वो एडजस्ट कर सकता है, वो प्लाइबल पर्सन है, मान जाता है. बड़ा ऐसा नहीं है कि जो रिलेंट ना करे, ठीक है, तो जो रिलेंट कर जाता है, तो इट मीन्स जो एडजस्ट कर जाता है वो फ्लेक्सिबल पर्सन होता है, वो प्लाइबल होता है. नाउ इसे द प्लाइबल वी नो. नाउ प्लाइबल को देख लो यार, प्लाइबल कैसा होता है, इसको ऐसे याद कर लो, ये प्लाई होती है और ये एबल होता है. तो भाई जो वुड का जो लॉग होता है, वुड का जो बोर्ड होता है, वो तो बेंड नहीं होता, लेकिन जो प्लाई होती है वो बेंड हो जाती है ना. तो यानी अगर आप प्लाई जैसे हो तो यानी आप बेंड हो सकते हो, यानी आप एडजस्ट कर सकते हो, तो आप फिर प्लाई जैसे हो, प्लाई एबल हो, देन इट इज़ एडजस्टेबल काइंड ऑफ थिंग. वेरी वेल वन कैन लर्न. प्लाई एबल है, स्टील ऑलिड स्टॉलिड है, इट इज़ ईजी आफ्टर दैट. ओके, acumen is the word. Acumen. You are an engineer, you still can paint and you can draw very good. You say this is my acumen, this is your talent होता है, that is your flair होता है. It means acumen is talent है. एक वर्ड होता है flair, एक वर्ड होता है finesse. If you know the word, we know the word prowess. These are the words for acumen, talent के लिए यूज होते हैं. ओके,
फ्लेयर एक ये वाला भी होता है, अगर आप देखोगे तो ये फ्लेयर भी होता है और ये वाला फ्लेयर भी होता है. Kindly learn this. Whenever you come across these words, pairs, note down immediately. ये फ्लेयर हमने बोला है टैलेंट है, जिसका आपका फ्लेयर का पेन भी आता है. ओके और ये फ्लेयर क्या है? ये फ्लेयर मतलब एनलार्ज से मतलब हो जाता है. न्यूज आप डिक्शनरी में देखेंगे तो वो फ्लेयर बताता है फायर का फ्लेयर हो जाता है. अग्रीड. हैव यू सीन द वेल्डिंग गाय, जब वो अपना बर्न करता है, उसको इग्नाइट करता है, एकदम से फ्लेयर आता है, दैट इज फ्लेयर. एनलार्ज ही तो हो रहा है. बट कभी कभी क्या आप कहते हैं ये बात तो कुछ भी नहीं हुई थी, जरा सी बात ही बढ़ गई, तो मैटर क्या होता है? फ्लेयर अप हो जाता है. हल्का सा वुंड होता है लेकिन वो फ्लेयर कर जाता है. फ्लेयर मतलब एनलार्जमेंट से है. स्कर्ट का फ्लेयर होता है, फ्लेयर मतलब एनलार्जमेंट से है, तो फायर का भी फ्लेयर है. डिक्शनरी में सिर्फ वही दे रखा है, बट दिस इज अगेन द फ्लेयर इज दिस थिंग. नाउ यू मस्ट नो, FLAIR वाला जो पेन यूज करते हैं वो टैलेंट है. वो बताता है भैया मेरा पेन लोगे तो मैं टैलेंटेड हो जाओगे, ऐसा कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, वो फ्लेयर है. तो ये फ्लेयर आ जाता है. नाउ एक्यूमेन है. नाउ इफ यू से, क्यों ना मैं इसको ऐसे ही समझ लो, AQ प्लस मैन, और Q मुझे पता है यार ये IQ होता है, यानी मैं ऐसे समझ लेता हूं ए मैन ऑफ IQ, मतलब फिर वही हो गया ना इंटेलिजेंट. इफ यू हैव द acumen इट मीन्स यू हैव द IQ. यू आर ए मैन ऑफ Q, अ मैन, यानी आपका IQ है, यानी आप टैलेंटेड हैं, ऐसा मान लिया acumen हो जाता है. इट इज लाइक लर्निंग. होप यू अंडरस्टैंड. इट इज लाइक लर्निंग. मैं वर्ड को कैसे लर्न करूं. सेम प्रॉब्लम इज विद द फॉरेनर्स एज वेल माय डियर. इवन द ब्रिटिश हिमसेल्फ इज रियली ट्रबल्ड कि यार वो लर्न कैसे करे. इंग्लिश इज सच अ लैंग्वेज, आपको डिफरेंट ways you have to adapt and then learn it. Okay, this is one way. Then we need the word, we know this word, we have heard this word many times, abridged. Abridged होता है, तो मैं इसको तो ऐसे ही, abridged का मतलब होता है shortened कर देना होता है. आप इफ यू सी इन द मार्केट मेनी नॉवेल्स यू फाइंड, उसमें लिखा रहता है अनएब्रिज्ड एडिशन ऑफ फला नॉवल. अनएब्रिज्ड एडिशन मीन्स नथिंग हैज बीन रिड्यूस्ड, उसको छोटा नहीं किया हुआ. राइटर हैड रिटन 700 पेजेस, इट इज देयर इन इंडिया एट 700 पेजेस. मान लो वहाँ पर उसने US में या UK में कहीं 700 पेज का लिखा था, स्विट्जरलैंड में, बट आपके यहाँ पर वो 500 पेजेस का उसने कर दिया, उसमें 40-50 पेज निकाल दिए, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि स्टोरी का कहीं ना कहीं ऐसा कंटेंट होता है. राइटर वांट्स टू से हिज इमोशंस, प्रॉब्ली हो सकता है यू फाइंड यार इसकी जरूरत नहीं है, तो क्या हुआ, वो 60 पेजेस 100 पेजेस ही मेड मनी ऑन दैट. ऐसे भी डुप्लीकेट नॉवल मिलते हैं, बट सर्टेन टाइम्स यू फाइंड ऑन द नॉवेल्स इट इज एन अनएब्रिज्ड एडिशन. मीन्स जिसको आपने अनएब्रिज्ड है, एब्रिज नहीं करा है, जिसको आपने छोटा नहीं करा है, वो वैसा वाला. तो अब्रिज का मतलब शॉर्टन कर देना है, वो तो क्लियरली समझ आता है. ए और ब्रिज है, यानी वी मेक अ ब्रिज ना, किस लिए, टू shorten the gap, isn't it? It means a bridge, a bridge. Bridge आदमी क्यों बनाता है? Naturally गैप कम करने के लिए बनाता है, तो अब्रिज्ड हो जाता है. लेसन करना है, रिड्यूस कर देना होता है, तो अब्रिज करने का मतलब शॉर्टेंड कर देना होता है. नाउ आई नो द वर्ड स्टॉलिड, स्टील जैसा, सॉलिड हो गया. फिर आई सेड द वर्ड प्लाइबल, जो प्लाई जैसा हो गया. फिर व्हेन आई सेड एक्यूमेन, ए मैन ऑफ Q, AQ मैन. देन अब्रिज्ड, ब्रिज, यानी आई मेक अ ब्रिज टू शॉर्टन द गैप, अब्रिज्ड हो जाता है. नाउ दीज 4 वर्ड्स आर विद यू, काइंडली नोट देम. इट इज इजी टू लर्न आफ्टर दैट. So another word we learn now is libertine. Okay, so the word libertine is the word there. Libertine we say is corrupt होता है. Libertine is corrupt. तो क्लियरली समझ आता है वर्ड को, अगर आप देखें
libertine activities, libertine characters, libertine characteristics, we say libertine हो जाएगा. Now we say libertine, I break it like this. Liberty plus teen. Libertine, I learn like this. Libertine, okay? तो libertine हो गया. Means teen मतलब आपका teen. Now we understand. This is teen means teenage. And liberty है. यानी if you provide liberty in the teenage to a child, he definitely tends to take advantage of the situation and then tends to be corrupt. He tends to be libertine. So liberty और teen, यानी teen age में अगर आप बच्चे को फैसिलिटीज़ दोगे, ज़्यादा लिबर्टी दे दोगे तो वो फिर वो गड़बड़ हो सकता है, करप्ट हो सकता है. तो लिबर्टाइन मीन्स दी लिबर्टी इन द टीन. लिबर्टीन, आई लर्न लाइक दैट कि यार ये इजी है. लिबर्टाइन मतलब गड़बड़ हो जाना, करप्ट हो जाना होता है, दैट इज़ लिबर्टाइन होता है. ओके, देन वैसिलेट. वैसिलेट होता है, इफ यू आर वैसिलेटिंग इट मीन्स ड्वेल माइंड, वी कैन से टेंटेटिव जिसे कहते हैं, फिकल माइंड हो जाता है. यू कैन से अनश्योर हो जाते हैं. तो यू आर वैसिलेटिंग बिटवीन टू थिंग्स, यार ये करूं या वो करूं, दिस इज वैसिलेटिंग. तो यार ये तो समझ आता है. वैसिलेट को अगर आप देखोगे तो फिर वो ऑसिलेट से याद रखिए. पेंडुलम, went there, then came here, then went back here. What do you call? Vacillated, oscillated. तो what were you doing? अच्छा यार ये कर लेता हूँ, अच्छा यार ये कर लेता हूँ, नहीं यार ये करता हूँ. ऐसे कई बार हमारे साथ होता है. तो then I was vacillating. That is oscillating. Say like that only. Vacillate हो जाता है. Okay? So this is what the vacillate is. Another word. Strictures. Conditions. You say like this, strictures. So strictures means conditions. Imposed means restraints or the restrictions. That is the strictures. So in the meeting, the new strictures have been passed. These are the strictures, means these are the conditions being imposed on you. You cannot do this. आपको इतना ही करना है, आपके इसके beyond नहीं जा सकते. ये restraints हैं, ये restrictions हैं. That this is something your limitation. Beyond that you cannot do. तो वो restrictions हो जाएगा. We call it. These are known as strictures हो जाता है. Now when you say the word strictures, we consider. इसको ऐसे याद करिए. strict तो समझ ही आ रहा है. Teacher. स्ट्रिक्चर, स्ट्रिक्ट टीचर, स्ट्रिक्ट टीचर, यानी जो स्ट्रिक्ट टीचर होगा वो हमेशा आपके साथ कंडीशंस लगाएगा, ऐसे करिए वैसे करिए. ही विल नॉट गिव यू मच ऑफ द लिबर्टी टू एंजॉय लाइफ लाइक यू वांट. तो दैट इज स्ट्रिक्चर, स्ट्रिक्ट टीचर, दैट इज द कंडीशंस इम्पोज्ड ऑन यू, स्ट्रिक्चर्स. ओके, देन another word, adroit. What do you mean by the word adroit? When you say the word adroit means, adroit is, we say, skilled, talented, proficient. So if you have an adroit mind, he is an adroit means very talented. He has mental skill. हाई मेंटल स्किल वाले को बोलते हैं एड्रॉइट हो जाते हैं. ठीक है, एड्रॉइटनेस हो जाती है. दैट इज व्हाट द एड्रॉइट. अगर आपने वर्ड वार्मेडीजी में पढ़ा है तो जब हमने एम्बी डेक्स्ट्रस पढ़ रहे थे और डेक्स्ट्रस पढ़ रहे थे तब हमने एड्रॉइट वर्ड भी पढ़ा था. तो वो बता रहा था डेक्स्ट्रस होता है जो हैंड से एक्सपर्ट होता है. द वन हु यूजेस हिज हैंड्स प्रोफिशिएंटली, वो डेक्स्ट्रस है. द वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स वो एम्बी डेक्स्ट्रस है. बट हु इज मेंटली वेरी स्किल्ड.
ओके, दैट पर्सन इज एड्रॉइट है, दैट इज व्हाट वी से एड्रॉइट होता है ना। अगर आपको एड्रॉइट पता है तो यार इसे एंड्रॉयड से लर्न कर सकते हैं नहीं? जैसे आपका एंड्रॉयड फ़ोन वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट हो चुका है, बहुत सारे ऐसे काम कर देता है जो कभी आपने सोचा भी नहीं था। द फोन दैट वी हैव, द एंड्रॉयड, दैट टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग, इट इज़ क्वाइट स्किल्ड। तो मुझे ऐसा याद है कि एंड्रॉयड जैसा इंटेलिजेंट है वैसे ही एंड्रॉयड भी इंटेलिजेंट होता है। आई हैव लर्न लाइक दैट। ओके, सो आई नो लिबर्टाइन क्या हुआ, ना आई नो वैसिलेट ऑसिलेट क्या हुआ, ना वे नो स्ट्रिक्ट मतलब स्ट्रिक्ट टीचर क्या हुआ, ना यू नो एड्रॉइड मतलब एंड्रॉयड है काइंड ऑफ थिंग। आई नो दीज वर्ड्स। ओके, so kindly note these words. We'll discuss a few more, please. देखिए आगे वर्ड करते हैं। recalcitrant, recalcitrant word seems very difficult. Recalcitrant means difficult to control, unruly, उद्दंड बोलते हैं हिंदी में ऐसे वाले। टीचर हैड टफ टाइम कंट्रोलिंग रिकैल्सिट्रेंट स्टूडेंट्स, मीन्स अनरूली, मान नहीं रहे थे, संभालना मुश्किल हो रहा था। एक वर्ड होता है rambunctious. Kindly note this word as well and learn it. Rambunctious. This is also the synonym of the word recalcitrant. Sounds a little difficult, but if you just break this word, recall. तो आपको बार बार recall कौन करता है? Who calls you up despite saying no hundreds of times? कौन है जो आपको बार बार फोन कर रहा है आपके मना करने के बावजूद भी? वो कॉल सेंटर वाला ही है। रीकॉल करता रहता है, रीकॉल करता रहता है, सॉरी थैंक यू बोलता रहता है, लेकिन आपको अनॉय करता रहता है। तो यानी रिकॉल करने वाला रिकैल्सिट्रेंट है, यानी वो आपकी बात नहीं मान रहा है, वो सुन नहीं रहा है, उसको हैंडल करना मुश्किल है, आप कुछ नहीं कर सकते उसका। यू हैव टू जस्ट मैनेज। आप गुस्सा खाओगे, अपना ही खून गर्म करोगे, कुछ नहीं होगा। तो इट इज़ लाइक हैंडलिंग, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल दीज पीपल। इट मीन्स रिकैल्सिट्रेंट, मतलब लर्न करने के लिए कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि दे आर दीज काइंड ऑफ टफ पीपल, जस्ट लाइक दिस ओनली, कि अगर मैं याद करूँ तो मुझे ज़्यादा फ़ोन कौन करता है मना करने के बावजूद भी? वोडाफोन वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ? रिकैल्सिट्रेंट काइंड ऑफ हो गया, ऐसा समझ लीजिए। जो रिकॉल करे वो रिकैल्सिट्रेंट होता है। ओके, एक वर्ड देखें, बर्सर्क होता है। बर्सर्क करना होता है। बर्सर्क मतलब टू बिहेव इन अ डिसऑर्डरली मैनर, वी से बर्सर्क करना होता है। बिहेव इन ए डिसऑर्डरली मैनर, और यू कैन से वायलेंट मैनर or uncontrollable manner, say like that। यानी वो जरा सिस्टमेटिक काम नहीं करता, अनकंट्रोलेबल हो जाता है, डिसऑर्डरली हो जाता है, हैपजार्ड जिसे कहते हैं, हैपजार्ड वे में। एग्जैक्ट वर्ड इज दैट ओनली, यू कैन राइट डाउन, हैपजार्ड वे। बड़ा डिसऑर्डरली काम, वो बर्सर्क हो जाता है। मीन्स व्हेन द पुलिस ओपनड फायर, ओके, व्हेन द पुलिस ओपनड फायर द क्राउड वेंट बर्सर्क, द क्राउड वेंट बर्सर्क। आप समझ गए ना, अफरा तफरी मच गई, तो ये सब इधर उधर भागने लगे, सब डिसऑर्डरली मैनर में एक्ट करने लगे, दैट इज बर्सर्क हो जाता है। ओके, जस्ट बर्सर्क है। अब लर्न करने का तरीका ध्यान देखें। देखो, इसको ऐसे मैं फनी थोड़ा, ये बर को आप थोड़ा लर्न करिए, बियर,
और सर्क मतलब सरक। तो अगर वो ज़्यादा बियर पी लेगा तो फिर वो सरक जाता है, ऐसा हम समझ लेते हैं। यानी अगर एक आदमी उसने बियर पी है तो कंट्रोल्ड है, लेकिन इफ़ ही टेक्स quite a huge quantity, then definitely he will not be behaving in a normal manner, he will be berserked. मीन्स बियर, बर को बियर, सरक तो ये समझ ही आता है, सरक जाता है। कोई आदमी सरक जाता है तो मतलब कैसा बिहेव करता है, पागलपंती जैसे आप कहते हैं यह सरक गया, तो सरक से भी समझ आता है ये सरक है। अब इसको सर्क नहीं, लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आई हैव टू अडेप्ट इट as per my way of doing. See, in market, this is not I am teaching. Then in market there are books which are available, very costly book. One book will cost you around 1,500 rupees. Books are available in the market. The books which teach us mnemonics. So I learned from those books. I am just guiding you that way. It is not I adapted this thing. ये मेरा बनाया हुआ तरीका है। आप अपना शॉर्टकट बना सकते हो for sure. लेकिन जो लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ, दे आर दिस एस्टेब्लिश्ड लॉजिक, पीपल आर लर्निंग फ्रॉम देम। आई एम टेलिंग यू कि यार ये तरीका होता है। तो यहाँ से हमने देखा बर सरक है, आप कोई और तरीका भी निकाल सकते हो। सरक पढ़ते समय, सरक समझ से ही बंदे को समझ आता है कि सरक हो गया, यानी सरक गया मतलब पागलपंती जैसा बिहेव कर रहा है, बर सरक है। हाँ, बियर पी के कर लेगा तो जल्दी हो जाएगा, जो शराब पीता है उसको जल्दी याद हो जाता है ये वाला वर्ड, उसके टेस्ट की बात है, ऐसा भी कर सकता है नहीं। देन प्लेथोरा इज द वर्ड, प्लेथोरा होता है। प्लेथोरा मीन्स व्हाट? प्लेंटीफुल। वी से प्लेथोरा इज प्लेंटी, abundant, we say, okay? तो when something is in large quantity, we say abundance में होती है, then we say plethora होता है। When our Prime Minister goes abroad and then the Indians living there, they come and meet Mr. Modi. So the newspaper writes, when Mr. Modi visited that place, the plethora of Indians came and visited him. Plethora of Indians means huge quantity of, that plethora होता है। ठीक है, we say plethora of opportunities will be available once you complete your graduation and come in the market, that plethora हो जाएगा। तो plethora means abundance से रिलेशन है, ज़्यादा से मतलब है। अगर आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे याद रहेगा। हिंदी में देख लो यार, ये पी ले और थोड़ा है, यानी उसने, आप इसको याद ऐसे कर लीजिए कि पी ले और थोड़ा। उसने पहले ही पी रखी है, आप उसे और ज़्यादा पिला रहे हो, उसे कह रहे हो यार और पी ले। पी ले थोड़ा मतलब पी ले और थोड़ा, यानी पहले ही उसने पी रखी थी, आप उसे और पिला रहे हो, यानी एक्सेस कर रहे हो, एबंडेंस कर रहे हो, प्लेथोरा हो जाता है। सेल दिस वे, आप जैसे मर्जी लर्न करिए, मोदी जी वाले एग्जाम्पल से याद करिए या पी ले और थोड़ा से याद करिए, याद हो जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल मैंने लर्न कर रखा है। प्लेथोरा मुझे एकदम से याद आता है कि यार जब हमारे डिग्नेटरीज बाहर जाते हैं, नेचुरली जो वहाँ रहता है, ही वांट्स टू मीट, कि अपनी कंट्री से कोई आया है, तो नेचुरली वो प्लेथोरा हो जाता है। लेकिन अगर आपसे याद नहीं रहे तो भैया वहाँ से याद कर लीजिए, पी ले और थोड़ा से। देख then another word, Bacchanalian is the word, Bacchanalian is the word। प्रोनाउंसिएशन क्या है? Bacchanalian, Bacchanalian is the pronunciation, Bacchanalian होता है। Bacchanalian means who drinks a lot, very much we say। जिसको एक वर्ड हमने शायद अभी कभी पढ़ा हो तो डिप्सोमेनिया होता है। एक फ्रेज भी होती है, टू हिट द बॉटल। हु बिलीव्स इन दिस? कुछ भी हो जाए, इंडिया हारे या जीते, उसने तो हिट द बॉटल करना ही है, उसने तो शराब पीनी ही है। ऐसा वाला आदमी जिसको डिप्सोमेनिया हो, ठीक है, मीन्स ही स्टार्ट्स विद द डॉन एंड एंड्स विद द डस्क। सुबह से लेकर शाम तक शराब पीने वाली आदत जिसको होती है, उसको बोलते हैं, दैट काइंड ऑफ पर्सन इज नोन एज बकनेलियन हो जाता है। ओके, बकनेलियन तो समझ ही आ रहा है यार, ये बक है, तो यानी ऐसा भी मान सकते हो कि जो आदमी बक ज़्यादा शराब पी लेगा तो फिर कंट्रोल में नहीं रहेगा, फिर नेचुरली ऐसा हो जाएगा। आई एम नॉट एलिगेटिंग यानी द वन हु इज ड्रिंकिंग,
इट इज़ अप टू वंस टेस्ट व्हाट ही डज, लेकिन जरूरत से ज़्यादा पी लेने के बाद तो नेचुरली स्टेज में आ ही जाता है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द फेलो, दैन इट बिकम्स बक बक करने लग जाता है कुछ कुछ। जैसे आपको पता है, मैंने एक फ्रेज में पहले भी आपको फ्रेज सिखाई थी, इसमें मैंने बोला था कि सी पिंक एलिफेंट, याद है, यानी ड्रंकन हेलुसिनेशन हो जाता है। तो ये वाला स्टेज में आ जाता है बकबक करने के लिए, यानी बकनेलियन, जो वो नेलियन जो बकबक करे, बकनेलियन यानी बकबक तभी करेगा जब जरूरत से ज़्यादा शराब पी लेगा, तब स्टेज में आ सकता है। या फिर ऐसा भी लर्न करो, इतना लर्न करो, ये वाला इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए, तो इसको हिंदी में पढ़ के देखो क्या है। बच्चन है, तो हमने ऐसा समझ लिया कि बच्चन है, बच्चन मतलब अमिताभ बच्चन है, से लाइक दैट ओनली। तो शराब, उनकी एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन की, शराबी, तो आपने शायद ना देखी हो, काफ़ी पुरानी मूवी है। तो उनकी मूवी आई थी शराबी, तो बच्चन क्या है, हम मान लेते हैं शराबी है, क्योंकि बच्चन सोचते ही मुझे शराबी फिल्म का गाना याद आने लगता है। इसका मतलब यानी मुझे मालूम हो जाता है कि बच्चन जिसमें आ रहा है यानी वो शराबी होगा, या तो मैं बच्चन से याद करता हूँ, या बकबक से याद करता हूँ, या फिर बकनेलियन भी याद कर लेता हूँ, या फिर आई कैन थिंक ऑफ एनी वन, द वन हु ड्रिंक्स अ लॉट, आई नो द पर्सन, सपोज एक्स फ्रेंड ऑफ माइन इज लाइक दिस ओनली, तो मुझे बकनेलियन होते उसके बारे में याद आ जाता है कि यार वो होता है। और जो नहीं पीता है वो मुझे पता है कि जो सूफी है, मेरा कोई ऐसा यार दोस्त है जैसा पर्सन, वो टी टोटलर होता है, जो बिल्कुल नहीं ड्रिंक करता वो टी टोटलर होता है। होप यू अंडरस्टैंड, इट मीन्स व्हाट वी से, टी टोटलर ही मैंने बात करी। हु नेवर ड्रिंक्स, हु डज नॉट टेक एनी अल्कोहलिक ड्रिंक्स इज टी टोटलर है। अब टी टोटलर को भी इतना याद कर लो ना कि ये टी है, यानी अपना टोटल काम सिर्फ वो चाय से ही चलाता है, ड्रिंक नहीं करता है, ये टी टोटलर है, टी से बन जाता है, टी टोटलर होता है। होप यू अंडरस्टैंड, वी हैव डिस्कस्ड these 15-20 words with you, hope you learn them. I have plenty like this, I will come with few more such videos with you. If you like it, kindly keep commenting on the videos when you watch them. This is being with me, your being with me is definitely helping me to make more videos and then improve my quality and then give you better content. So your cooperation is really invaluable for me. So watch this, comment, and then we'll definitely come out with few more videos. Thank you very much for being with me. God bless you all.